Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video, it's going to be a very important video, and it's been a long time since I've made this much of an important video, so I'm very happy. I know that many of you are going to watch this video till the end because it's such an important video. You've already read in the title that NATA 2024 brochure is out. Yes, in December the brochure is out. Usually the brochure used to be out in like February, March, but abhi December mein hi brochure aa gaya, and there's a huge reason for that. And the reason is that there has been major changes in the NATA examination for the year 2024. तो इतने सारे चेंजेस स्टूडेंट्स को समझने में भी टाइम लगेगा. यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड इट, ग्रास्प इट एंड डू योर प्रिपरेशन फॉर द नाटा एग्जामिनेशन, बिकॉज इफ यू डोंट प्रिपेयर फॉर इट वेल you might not become the next topper, or even you might not qualify the examination. Yes, you heard me right. The paper pattern has completely changed, and it is something that you may or may not like. I don't know. I will discuss everything in detail in today's video, each and every point about NATA 2024 examination, how you can become the next topper, and कहीं ना कहीं अपने आप को लकी समझो आप ये अगर वीडियो देख रहे हो, क्योंकि एकदम से पैटर्न चेंज हुआ है. मैनी स्टूडेंट्स वुड बी अनअवेयर और उनके कम मार्क्स आएंगे. बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ एंड इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी. आप ये वीडियो कंप्लीटली देखोगे, आप ऑलरेडी सबसे एक स्टेप अहेड तो हो ही जाओगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो. So guys, from the last 4 years, like after the COVID situation happened, the NATA pattern completely changed. Drawing was removed, and उसकी जगह जो questions आते थे और आए थे, that were not so good. Like, it was something very out of the box. I don't think that those questions were required to test the potential of the architecture aspirants, और वो architecture से related भी नहीं थे. तो the paper pattern from the last 4 years was not that good. I personally did not like the NATA paper at all, क्योंकि जो बच्चे टॉपर बन रहे थे, मे बी कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, बट जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे थे वो भी आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चंस आर्किटेक्चर से रिलेटेड नहीं थे. समझ रहे हो? अर्लियर द नाटा पेपर पैटर्न वाज क्वाइट गुड, एंड दिस पेपर पैटर्न दैट हैज कम राइट नाउ इन 2024, I think it's the best till now. It's even better than the JEE BIAC examination. So the JEE BIAC examination, the paper pattern is fixed from quite a long time, एंड मुझे वो पैटर्न थोड़ा सा पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत हाई लेवल की JEE BIAC मैथमेटिक्स आती है, विच इज़ द IIT लेवल मैथमेटिक्स, 11th and 12th ग्रेड मैथमेटिक्स, विच इज़ नॉट दैट मच यूज्ड इन आर्किटेक्चर. सो यू नीड नॉट बी वेरी वेरी गुड इन मैथमेटिक्स इन ऑर्डर टू एक्सेल इन आर्किटेक्चर. तो वो एक थोड़ा सा लूप होल है JEE BIAC एग्जामिनेशन का, जैसा मुझे लगता है. एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट दैट्स माई ओपिनियन. बट इन नाटा एग्जामिनेशन, एज यू know that the high level mathematics is not there, even 11th and 12th grade mathematics is not there. So it's just basic mathematics, geometry and all that. And now even the drawing part is back in a very systematic manner. The drawing part, the questions which will be there in this paper 2024, it's very very related to architecture. If you do good in the drawing part, then you definitely have the potential to become a good architect. So the paper pattern now in NATA is बहुत अच्छा पेपर पैटर्न आया है. मतलब एक्चुअली में अच्छा क्या होता है, इट्स लाइक द क्वेश्चंस विच विल कम actually need to be there to test the potential of successful candidates who can do good in architecture in future. So that's why I'm liking this pattern, and I know that the introduction is quite long and किसी को भी ये सुनने का भी मन नहीं कर रहा होगा, सबको brochure देखना है. So yeah, I'm also going to explain you the brochure now. Without much introduction, let's get started with the video. Alright guys, so as you can see the brochure on the screen, I will just scroll through the brochure completely and I will read all the points that are important for you to know. So the first thing over here is that if you want to become an architect and if you want to practice architecture in India, then you need to do architecture from a COA registered institution. So in India there are currently 375 institutions who provide the BArch degree, क्योंकि अगर आप COA registered college में admission नहीं लेते हो तो आपको license
कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाएगा, एंड देन यू कैन रियली कॉल योर सेल्फ एन आर्किटेक्ट एंड डू आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस, दैट इज द क्रिमिनल ऑफेंस। तो इसीलिए अभी इंडिया में करेंटली 375 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कि आप एडमिशन लेके एंड यू कैन कंप्लीट योर आर्किटेक्चर कोर्स। सम ऑफ द कॉलेजेस गिव एडमिशन थ्रू नाटा एग्जामिनेशन एंड सम ऑफ द कॉलेजेस गिव एडमिशन थ्रू JEE BAC examination, and some of the institutions give admission through both the examinations. So these two examinations are all India entrance examinations for architecture and is very very important. मैंने एक वीडियो भी बनाई थी regarding the list of institutions in India that provide architecture course, but वो जब मैंने पहले बनाया था ना last year, so there were like 400 institutions at that time. अभी शायद थोड़े कम हो गए, and this is a point to notice guys, because in architecture the students every year who want to do architecture are reducing actually. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आई थिंक दे हैव डन दीज चेंजेस, क्योंकि अगर हर साल आर्किटेक्चर कम बच्चे करते जाएंगे सो दिस प्रोफेशन विल एक्चुअली डाई इन इंडिया। तो इसीलिए भी ये सारे चेंजेस शायद किए गए हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू डू आर्किटेक्चर इन इंडिया। एंड ओवर हियर यू कैन सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अनलाइक एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नाटा इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट दैट असेसेस अ कैंडिडेट्स एबिलिटी थ्रू अ वैरायटी ऑफ टेस्टिंग फॉर्मेट्स। एंड अगर आप लास्ट ईयर का ब्रोशर देखोगे तो 2-3 साल से वो लोग ये लिख रहे थे दैट कोचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन द नाटा एग्जामिनेशन बिकॉज द entire syllabus is designed to test the innate ability of a candidate, but अभी इस साल इन्होंने ये coaching not required वाला part हटा दिया है, and this clearly means that if you are not preparing for NATA examination, if you are not taking guidance and coaching, you might not be able to score really well in the examination. तो ये एक बहुत important चीज़ है कि preparation करना, coaching लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अभी फॉर नाटा एग्जामिनेशन, एंड ये ब्रोशर में भी मेंशन है। आप चाहो तो लास्ट ईयर का ब्रोशर चेक कर सकते हो, पहले वो लोग ये मेंशन करते थे, अभी इन्होंने हटा दिया है। तो ऑब्वियसली इसका यही मतलब है कि आपको प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा टू एक्सेल इन द नाटा एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्केड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। सो हियर यू कैन सी द कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट्स इन नाटा 2024। तो टोटल 3 अटेम्प्ट होने वाले हैं, एंड द बेस्ट स्कोर आउट ऑफ द 3 attempts shall be considered for the declaration of the results. The score of NATA test will be valid for academic period of 2 years. So major update over here. So guys, from the last few years in the NATA examination, if you were giving all the 3 attempts of the examination, then your final score would be an average of the best 2 scores that you have got. But this time there is a relaxation that you can give all the 3 attempts and still your final score will be the best score that you have got in all the 3 attempts. So it's a very big relaxation over here that I can see, and जो मैं अब बताने वाली हूँ वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है। नाटा टेस्ट वुड बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 academic years। मतलब अगर आप इस साल नाटा का एग्जामिनेशन देते हो तो आप इस साल भी एडमिशन ले सकते हो, एंड इवन अगले साल भी आप एडमिशन ले सकते हो। सो हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम सेइंग राइट नाउ, दैट इवन 11th grade स्टूडेंट्स कैन गिव नाटा एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो मतलब अब से क्या होगा, अगर यही कंटिन्यू रहा अगले साल भी, तो क्या हो सकता है कि इवन द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th grade कैन फोकस completely on the NATA examination, can score 160, 170 marks, top marks स्कोर करो, फ्री हो जाओ अच्छे मार्क्स स्कोर करके कि हाँ 12th के बाद तो मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा ही होगा, क्योंकि 2 साल तक वैलिड है स्कोर। एंड जब आप 12th में जाओगे तो अपने बोर्ड्स पे फोकस करो, वहां पे भी 90%, 95% से ऊपर लाओ, एंड हियर यू कैन गो इनटू सेप्ट एंड ऑल दी top colleges that are there. So I think this is a huge advantage for 11th grade students out here who are listening to me. Now is your time. Prepare well for the NATA examination. अभी ही अच्छे मार्क्स स्कोर करके और फ्री हो जाओ. So huge advantage for 11th grade students who are watching this video right now, if you are watching. Now next thing is that examination will be conducted on all weekends. तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर डेट्स आएंगी, जैसा मुझे लग रहा है ब्रोशर पढ़ के हर वीकेंड पे अप्रैल टू जुलाई 2024 2 सेशंस में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। फर्स्ट विल बी द मॉर्निंग सेशन एंड नेक्स्ट विल बी द इवनिंग सेशन। तो ये तो होता ही है कॉमन हर एग्जामिनेशन में, दैट एवरी एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन 2 सेशंस, वन इज मॉर्निंग वन इज इवनिंग। दोनों का पेपर डिफरेंट होता है, सिमिलर होता है बट क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। इन द मॉर्निंग
morning session the timing is 10 to 1 and the evening session timing is 1:30 to 4:30. that will be there. And examination, NATA 2024 examination will commence from 6th April 2024. इसके बाद सारे वीकेंड्स पे जुलाई तक होगा एग्जामिनेशन, वो बाद में पता चलेगा कि क्या क्या डेट्स आएंगी, तो हम तब उसके बारे में बात करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन. सो सिलेबस ओवर हियर इज चेंज नाउ. अर्लियर देयर वाज ओनली द एप्टीट्यूड पार्ट, पूरा 200 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता था, उसमें कुछ क्वेश्चंस रेलेवेंट होते थे आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स को टेस्ट करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस इररेलेवेंट भी होते थे, बट अभी सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं. कोई भी इररेलेवेंट क्वेश्चन अब आने नहीं वाला है, बिकॉज नाउ अनदर पार्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विच इज काइंड ऑफ यू कैन से विच इज बैक, क्योंकि 4 साल पहले भी ये पार्ट ऐसा ही आता था और अब वापस से वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, दैट द ड्रॉइंग पार्ट इज बैक. देयर इज गोइंग टू बी 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए is completely for drawing and for this part you're going to get 1.5 hours. ठीक है, तो 1.5 आवर्स में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? आपको बेसिकली 3 क्वेश्चन करने हैं. ऑन एन एवरेज यू विल गेट 30 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन. अगेन यू शुड बी प्रिपेयर्ड वेल. प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इफ यू रियली वांट टू स्कोर टॉप मार्क्स इन द नाटा एग्जामिनेशन. ठीक है, उसके बाद अगर आप एप्टीट्यूड की बात करो तो आपको 1.5 आवर्स मिलेंगे. अगेन हाफ टाइम है दोनों को करने के लिए एंड देयर विल बी 45 क्वेश्चंस व्हिच विल बी अ टोटल ऑफ 120 मार्क्स. तो आपका जो ड्राइंग वाला पार्ट है वो है 80 मार्क्स का, जो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो है 120 मार्क्स का. ठीक है, और दोनों मिला के फाइनल पेपर है आपका 200 मार्क्स का. ठीक है, आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स, बट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऐसा नहीं है कि आप कितने भी मार्क्स ले आओ आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लोगे. there is a particular qualifying standard, that is minimum marks that you have to qualify the NATA examination. तो minimum आपके drawing part में जो कि 80 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, इंडिविजुअली मैं बात कर रही हूँ, ड्राइंग पार्ट में जो आपका 80 मार्क्स का आ रहा है आपके मिनिमम 20 मार्क्स होने चाहिए, एंड एप्टीट्यूड में जो आपका 120 मार्क्स का आ रहा है मिनिमम आपके 30 मार्क्स होने चाहिए. दिस इज इंडिविजुअल क्राइटेरिया. अगर आपके एप्टीट्यूड में 50 है, ड्राइंग में 0 है, तो आप नाटा क्वालिफाइड नहीं हो, यू आर फेल इन नाटा. सो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, दैट व्हेन ड्राइंग पार्ट यूज्ड टू कम इन नाटा, सो व्हेन आई गेव नाटा एग्जामिनेशन एट माई टाइम, तब ड्राइंग आता था. And the drawing part in NATA used to come very very tough, बहुत टफ आता था. and I was a very good student in my school time when it came to drawing part. मैं बहुत अच्छा sketching करती थी, बहुत अच्छी थी drawing में, and still in my first attempt of NATA I failed in the drawing part. I could qualify in the aptitude part but I did not qualify in the drawing part. मेरे को 15 मार्क्स दिए थे, मतलब 80 में से, और 20 मार्क्स नहीं थे मेरे, तो मैं पूरा नाटा फेल हो गई थी. दैट मीन्स आई कुड नॉट टेक एडमिशन इनटू आर्किटेक्चर बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ एक ही अटेम्प्ट होता था, 3 अटेम्प्ट्स नहीं होते थे. तो मैं उस साल आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं ले पाई. आई हैव टू टेक 1 year ड्रॉप विच इज अ वेरी बिग थिंग. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट प्रिपरेशन फॉर नाटा एग्जामिनेशन इज कंपल्सरी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल यू माइट फेल इन द ड्रॉइंग पार्ट एंड देन बाद में आप मुझे बोलोगे कि मैंने बताया नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. अगर आप अभी तक डर नहीं रहे हो तो डरना शुरू कर दो, क्योंकि अच्छी खासी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी. एंड इवन वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर गाइज, दैट SSAC में हम लोग 4 साल से, पिछले 4 साल से नाटा का जो एग्जामिनेशन है उसमें हम ड्राइंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे बच्चों को. इस साल भी कोई भी बच्चा सिर्फ नाटा के लिए आता था ना, एनरोल होता था, उसको हम ऑटोमेटिकली ड्राइंग के लिए भी प्रिपेयर करते थे, जस्ट इन केस दैट ड्राइंग इज बैक. एंड ये वो साल आ ही गया. इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक अबाउट 2-3 months बैक, आई मेड अ वीडियो दैट ड्राइंग माइट बी बैक इन नाटा, एंड देखो ड्राइंग बैक आ गई. तो मुझे पहले से पता था कि आने वाला है इस बार ड्राइंग वापस, और देखो आ भी गया. सो दैट इज वाई यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी, शायद 1.5,000 उस पर व्यूज थे, तो शायद इन 1.5,000 बच्चों को तो पता होगा कि ड्राइंग आने वाली है. कमेंट करके मुझे बताओ अगर आपने वो वीडियो देखी थी या नहीं, क्योंकि अगर आपने देखी थी तो आपको आइडिया तो होगा कि ड्राइंग इस बार वापस आने वाला है. तो देखो मैं जो बोलती हूँ वो हो भी जाता है, और यूजुअली हर साल होता है. हर साल कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो मैं पहले से बता देती हूँ और
को काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आपको चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द मीडियम ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट, लाइक द मीडियम, लाइक द लैंग्वेज। तो पहली बार हिस्ट्री में नाटा एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन हिंदी एज वेल, सो इट्स अ ह्यूज थिंग गाइज, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, जो कि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं सपोज, तो क्या वो आर्किटेक्ट नहीं बन सकते हैं? सो इट वॉज अ ह्यूज कंसर्न एंड नाउ इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट द लैंग्वेज इज हिंदी एज वेल, तो उनके लिए भी अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द सिलेबस। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल बिकॉज डिटेल्ड वीडियो अभी आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो आएगी सिलेबस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। अभी मैं एकदम ऊपर से बता देती हूँ आपको दैट फर्स्ट इन द ड्राइंग पार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अ 2D composition question. 2D composition can only be taught by an architect. In fact, all the 3 questions, this is architectural drawing. It is not your regular fine arts drawing. It is proper architect से ही आपको सीखना पड़ेगा। Perspective sketching was invented by an architect, so definitely architects teach perspective sketching the best. बाकी कहीं भी आपको इतने अच्छे से पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी ही मैं क्लास ले रही थी, आई थिंक ऑन फ्राइडे आई वाज टेकिंग अ क्लास ऑन पर्सपेक्टिव स्केचिंग एंड स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ऐसी पर्सपेक्टिव स्केचिंग की क्लास उन्हें कहीं भी नहीं मिली है। बाकी उन्होंने और भी इंस्टीट्यूट्स में इनरोल किया था और भी यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी थी। यूट्यूब पे तो खैर आप सीख ही नहीं सकते पर्सपेक्टिव स्केचिंग, इट्स अ वेरी टेक्निकल कंसेप्ट दैट ओनली आर्किटेक्ट्स कैन टीच यू एंड आई विल एक्चुअली ऐड द क्लिप ऑफ दैट क्लास in here right now. You will all need to watch this class once again to understand these concepts in depth. But trust me, this is the reason why everybody in SSAC is able to draw perfect sketches by the end, because they have complete clarity. You go to any other coaching, even in architecture college, even so you might not know, but even in architecture college, students only, not people, so all the HSC students, they use the ebooks that I have given or like to them. तो जब तुम लोग जाओगे तब भी तुम यही ebooks मांगोगे और use करोगे. That's how well put it is. So it's a very in-depth technical thing that I'm explaining you right now. But I hope all of you are able to understand these points. So मैम मैंने तो फाइन आर्ट्स अकेडमी ज्वाइन करी हुई थी, वहां पे भी नहीं बताया था इतना। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका दैट इज ऑन 3D composition, which is basically made in isometric or in perspective, so that is again going to be taught to you by an architect. It's very important over here. So drawing part, definitely you can easily fail in the drawing part. This is the honest truth that I'm saying over here if you don't prepare for it. आप नाटा एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, फिर बैठे रहना, आर्किटेक्चर आपके हाथ से चला जाएगा। और क्योंकि एंड मोमेंट पे अगर आप कोचिंग आओगे, एंड मोमेंट पे मैं आपको क्या ही बता दूंगी, लास्ट 15 दिन में बच्चे कहते सिखा दो, 20 दिन में सिखा दो, 15-20 दिन में, मतलब मेरे लिए फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सबको मैनेज करना और सबको एक अच्छी क्वालिटी अच्छे से सब कुछ बताना। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड पार्ट, देन यू हैव विजुअल रीजनिंग विच इज नथिंग बट 2D 3D विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजिंग कि अगर एक क्यूब है तो वो टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, फ्रंट से कैसा दिखेगा। बेसिकली दीज आर द कंसेप्ट ऑफ मल्टी पॉइंट प्रोजेक्शन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शंस को समझना। अगर मैं आपको अभी समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, इट इज़ दैट टेक्निकल ऑफ अ कंसेप्ट, बट जो SSAC के स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ आ रहा होगा कि ये सब क्या होता है चीज़। तो देन यू हैव logical derivation, which is kind of any kind of logical question, actually not exactly basic maths but logical questions आएंगे। architecture and design aptitude, जिसमें आपका आएगा history of architecture, building construction and material, famous buildings and architects and much more topics related to architecture. Then you are going to have language interpretation, basically about English, so English grammar से related भी कुछ questions आने चाहिए definitely, because English is also a very important part in architecture. You should have communication skills to become a good architect, that is definitely going to be important. Even I have a decent amount of communication skills because I used to participate a lot in my college in events, and जब jury वगैरह देते हैं तो definitely you know that thing also develops your communication skills and the way you talk to your client or the people or anybody. Communication skill is not about English but about how you are able to explain your thoughts and your ideas to the other people, and वो आपको believe कर पाते हैं कि नहीं, that is very important in architecture and very important to develop also. एक ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर है जो कि आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डिज़ाइन के लिए, एक अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स को अपने इम्प्रूव करना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड लाना पड़ता है, जो कि
इन्नेट एबिलिटी नहीं होती है, मतलब आप बचपन से इस चीज़ के साथ पैदा नहीं होते हो, आपको इसे डेवलप करना पड़ता है। अगेन कैन ओनली बी टॉट बाय एन आर्किटेक्ट। तो आप जितने भी चीज़ें देख रहे हो, चाहे 2D 3D विजुअलाइजेशन हो, चाहे HOA हो, चाहे फेमस आर्किटेक्ट्स का टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, डिजाइनिंग वाला टॉपिक है, ठीक है, every topic mostly can only be taught to you by an architect, nobody else. And that's why in other coaching institutes आर्किटेक्ट्स अगर पढ़ाते भी हैं, वैसे तो नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट्स बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि इस फील्ड में आते हैं, बिकॉज आर्किटेक्ट्स टीचिंग फील्ड में, कॉलेज वगैरह में ज़्यादा पढ़ाना पसंद करते हैं और कोचिंग में बहुत ही कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो बहुत वेल रिसर्च नहीं होते हैं डेडिकेटेडली फॉर नाटा एंड JEE एग्जामिनेशन। SSAC में ग्रुप ऑफ आर्किटेक्ट्स हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर एन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, तो हम पूरे इंडिया में से जो बेस्ट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्ट्स हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, प्लस उन्होंने काफ़ी साल की रिसर्च करी हुई है फॉर नाटा एंड JEE एग्जामिनेशन, वो पढ़ाते हैं। सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स दैट SSAC इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू प्रिपेयर फॉर नाटा एंड JEE एग्जामिनेशन, दैट इज फॉर श्योर। ओके, सो ये कोई मैं ऐसी बात तो बोल नहीं रही कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे सब चीज़ जो है आपको दिख रही है सामने कि किस तरीके से क्या आने वाला है एग्जामिनेशन में और ये कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। Now over here the criteria has changed a little bit. Now 11th grade students like 10+1 जिनके पास PCM है, that they can also give architecture entrance examination which is NATA examination. Like 10+2 तो दे ही सकते हैं, जो आप अगर 12th में हो currently या फिर आप 12th पास हो तो आप definitely दे सकते हो। And even if you have done diploma with any kind of diploma जिसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रहा है आपके किसी सेमेस्टर में, then you can also give NATA examination, become an architect. Okay, so these are the criteria for taking admission into architecture and even giving the NATA examination. Now ये एक बहुत important criteria है that no candidate shall be admitted to architecture course unless and until he or she has passed 10+2 examination or equivalent or diploma also with, अगर आप 10+2 दे रहे हो, लाइक 12th अगर आपने करी है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स कंपल्सरी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए एंड मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन एग्रीगेट। इन लास्ट ईयर or in a few years, from the last few years there was this thing that in PCM also like physics, chemistry, maths, इन 3 सब्जेक्ट का एग्रीगेट भी आपका 50% होना चाहिए। अभी वो चीज़ हटा दी है, तो ये भी एक रिलैक्सेशन है कि अभी PCM का एग्रीगेट नहीं है, बट ओवरऑल आपका 50% 12th में होना चाहिए। एंड इफ यू आर अ डिप्लोमा स्टूडेंट देन यू शुड अगेन हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर डिप्लोमा विथ मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। Now if we talk about the application procedure, then the registration is going to start from 1st March 2024. तो अभी registration start नहीं हुआ है, it will start from 1st March. I will inform you on my channel जब start होगा to remind you once, but इसको याद रखो कि अभी start नहीं हुआ है, अभी आप register नहीं कर सकते हो, थोड़ा time लगेगा। Then you can read all these things, it is not that important as of now। एक बार registration start होगा तब important होगा। अगर results की बात करें, इसकी अभी कोई final date नहीं आई है, results पता चलेगा कि कब आएंगी, बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके ड्राइंग पार्ट में मिनिमम 20 होने चाहिए और एप्टीट्यूड में भी मिनिमम 30 मार्क्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक चीज तो मैंने आपको पहले बताई ही नहीं, इसको भी नोट डाउन करो। ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर नाटा शैल बी 70 आउट ऑफ 200। तो यार ये तो सबसे ज्यादा मेन चीज है कि अगर आपकी ड्राइंग में 20 आ भी गए और लाइक एप्टीट्यूड में 20-30 मार्क्स आ भी गए इंडिविजुअली, तो भी आपके तो 50 बनते हैं ना। सपोज आपके ड्राइंग में आए 20 एंड इन एप्टीट्यूड यू हैव गॉट 30, स्टिल यू आर गोइंग टू गेट 50 मार्क्स ओनली, राइट। बट स्टिल यू आर नॉट क्वालिफाइड इन नाटा, आपके तब भी टोटल 70 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 200। So that's very important over here. That means कि suppose you have got 15 in drawing and you have got 100 marks in aptitude, तब भी आप क्वालिफाई नहीं हो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आई थिंक मोस्टली वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या दैट वाज इट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ब्रोशर। अब मुझे तुम लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो उसको कर लेते हैं। Now guys, I really need to talk to you guys, so listen to me carefully. Firstly, मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहूँगी who are enrolled in SSAC, जो SSAC के स्टूडेंट्स हैं उनसे।
सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट वरी, तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो दैट यू आर इन सेफ हैंड्स, यू नो हाउ द लाइव क्लासेस आर, कितनी हेल्पफुल होती हैं, कितनी अच्छी होती है, कितनी मेहनत करते हैं हम तुम्हारे लिए, हर लाइव क्लास के लिए कितने अच्छे से कंटेंट की प्रिपरेशन करते हैं, तुम्हें पता है। इनफैक्ट जो तुम्हें असाइनमेंट्स मिलते हैं वो भी बहुत थॉटफुल हैं, टेस्ट तुम्हें जो मिलते हैं ऑनलाइन हर टॉपिक पे मिलते हैं, प्लस वाइवा भी हम लेते हैं, तो तुम्हें ये सब चीज़ें हेल्प करने वाली है टू कंप्लीट ऑल योर टॉपिक्स वेरी वेरी प्रॉपरली। एंड लास्ट के 10-15 डेज, जैसे अगर एग्जामिनेशन है उससे पहले 10-15 डेज वी विल कम्प्लीटली डेडिकेट टू एग्जाम लाइक मॉक टेस्ट, जिसमें बिल्कुल अगर जेईई बीआरक सेशन 1 है उसमें बिल्कुल जेईई बीआरक सेशन 1 जैसा हम तुम्हें 3 घंटे का पेपर देंगे लास्ट के 10-15 डेज में। सो दैट विल रियली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड you will know that you're going to score good marks in the examination because of these mock tests. तो ये हम एंड के लिए रखेंगे, बट वैसे तो तुम्हें पता है that you are in safe hands, so completely be relaxed। देखो हम तुम्हारे को प्रॉपर गाइडेंस दे ही रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऑनेस्टली बताते हैं, आवर एंटायर टीम वर्क्स वेरी वेरी हार्ड फॉर यू, बट फाइनल तुम्हें अपनी तरफ से तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, हर टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, लाइव वाइवा में आना तुम्हें पड़ेगा, जो हम लोग ओरल टेस्ट वगैरह लेते हैं वो सब तुम्हें करना पड़ेगा, कोई ग्रुप एक्टिविटी है तो वो करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर तुम सब चीज़ें फॉलो करोगे 100% है यार, तुम टॉपर बनोगे 100%। तो बस इतना थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा डेडिकेशन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ले आओ, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई नो दैट यू गाइज लव मी, आई लव यू। तो थोड़ा सा तो मेरी बात मानो कि थोड़ा सा अपने अंदर वो डेडिकेशन लाओ कि हाँ हमें अब से सारी क्लासेस अटेंड करनी है। मुझे पता है कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ही मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और एक और चीज़ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, बिकॉज यू नो दैट हाउ हार्ड वी वर्क फॉर ऑल ऑफ यू, सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ ड्रॉप अ कॉमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन कि तुम्हारी अभी तक की जर्नी इन SSAC इंस्टीट्यूट कैसी रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है, टीचर्स के साथ तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा तुम्हारा इंट्रैक्शन है, हाउ आर दी लाइव क्लासेस गोइंग ऑन, टेस्ट तुम्हें कैसे लग रहे हैं, एंड ओवरऑल तुम्हारी जर्नी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ इस वीडियो में कॉमेंट करके, मुझे भी, एंड obviously a lot of other students are also watching this video, so you are going to help out a lot of people। तो इसीलिए कमेंट करना मत भूलना। एक पहली बार मैंने तुमसे कोई रिक्वेस्ट की है तो कर दो, and I love you all। Now I'm going to talk to the students who are the viewers of SSAC channel, that what should be the strategy for all of you। So definitely I love all of you also who are watching me, but क्योंकि मैं students से तो daily basis पे बात करती हूँ, connected रहती हूँ, तो मुझे उनके बारे में पता है, उनके साथ मेरा अलग bond है। तुम्हारे साथ मेरा थोड़ा सा one sided bond है, because you watch me but I don't know who you are। तो इसीलिए थोड़ा सा इस part को ध्यान से सुनो। I'm going to guide you completely that how you can become the next topper of NATA and of JEE BARC examination। First of all, you need to attend our free live demo classes। Trust me on this guys, YouTube की जो videos होती है बहुत short होती हैं, हमें 30 minutes के अंदर ही डालनी होती है, so that is why all the information cannot be given in one single video, but because free live demo classes are live sessions which happen on Google Meet and there is two-sided interaction। तो मैं भी तुम्हें दिखूंगी, तुम मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करूंगी, दिस इज कंप्लीटली two-sided इंटरेक्शन, ऑल योर डाउट्स गेट क्लियर्ड, हर फैकल्टी मेंबर से तुम मिलते हो हमारे इंस्टीट्यूट के, सब कुछ देखते हो कि हम तुम्हें कैसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं, एंड वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड हाउ you will become successful in future if you crack these examinations। कैसे तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे आगे जाके, उन सब चीज़ों के बारे में डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, जिसकी क्लैरिटी YouTube पे नहीं मिल पाती है। So when you come in our free live demo classes, you get complete clarity regarding architecture as a career and also regarding architecture entrance examinations from the people who have been doing this from the last 4 to 5 years। So we have complete idea and complete clarity कि किस तरीके से प्रिपरेशन करवानी है, किस तरीके से तुम्हें टॉपर बनाना है। तो ये चीज़ जो है YouTube पे इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती है। वैसे तो हमने हर टॉपिक पे वीडियो डाला हुआ है, पर तुम्हें हर चीज़ नहीं पता होती है, पर तुम लाइव क्लास में आते हो तो तुम्हें 1-1.5-2 घंटे में सब कुछ पता चल जाता है। सो यू शुड डेफिनेटली enroll in our free live demo classes। To enroll in our live demo classes, you simply have to call or WhatsApp us on the number which is visible on the screen, which is
932908 This is our main official number. Also, you can visit our website, जिसका link description box में already है. When you will visit our website, book a free demo class button will be right there on the screen, and you can simply book your free demo class from our website directly. So you have to WhatsApp us or call us on the number, or you have to book a free demo class. It's going to be utterly important for you because नाटा एग्जामिनेशन के बारे में मुझे तुम लोगों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है डेमो क्लासेस में. एंड ऑल्सो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिसको देख रहे हैं, डोंट वरी, तुम लोग के साथ तो मैं क्लास करने ही वाली हूँ कल, तो मैं कर लूँगी तुमसे बात. So don't worry about that. Now guys, I will just give you a little bit of an overview that how we prepare our students and हमारी क्या strategy रहती है. So we prepare our students in a few stages, and this stage is for every topic. The first stage is attending live classes. These live classes are held by architects, क्योंकि ज़्यादातर हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी टॉपिक्स हैं वो आर्किटेक्ट्स ही पढ़ाते हैं, और हम बिल्कुल भी मर्ज नहीं करते हैं आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को, बिकॉज दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, चैनल भी डिफरेंट है हमारा. सो द फर्स्ट स्टेज इज द लाइव क्लासेस. नाउ लाइव क्लासेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जो लाइव क्लासेस होती है ना उसमें हम लोग सिंपल बुक से नहीं पढ़ाते हैं. यूजुअली वी मेक स्केचेस, प्रेजेंटेशंस, डायग्राम्स, 3 मॉडल्स. सो हम लोग बिल्कुल कंसेप्चुअली चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, रीड आउट नहीं करते हैं. दैट तो यू ऑलरेडी हैव इन योर ई बुक. सो लाइव क्लासेस आर कंडक्टेड बाय आर्किटेक्ट्स, एंड क्योंकि आप आर्किटेक्ट से पढ़ रहे हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इतने प्रिडिक्टेबल होते हैं, बिकॉज वी आर अ टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स. वी हैव रिसर्च्ड अबाउट द नाटा एंड JEE एग्जामिनेशन सो मच इन डिटेल फ्रॉम सो मेनी ईयर्स कि हमें एग्जैक्टली पता है कि किस चीज़ से क्या क्वेश्चन आ सकता है. एंड दिस इज वाई आवर क्वेश्चंस आर वेरी प्रिडिक्टेबल. यू विल हियर आवर स्टूडेंट्स सेइंग कि जो क्वेश्चंस उन्होंने टेस्ट एंड मॉक टेस्ट में दिए थे वो सेम रिपीट हुए. सो आई विल जस्ट ऐड अ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट रिव्यू राइट नाउ. इसको आप ज़रूर सुनो. Hi everyone, I am Yash Asodekar and I have scored 99.66 percentile in my JEE examination. I am Ishita Garg. I am a student of SSAC Institute. I have scored 99.99 percentile in my JEE Session 1 2023. Hello there, my name is Nandini Singhal and I have been a student of SSAC Institute. To tell you, this is not any other ordinary setup. There is a whole team working on it. Everything about this institute, the study material, the mock test, the to-the-point content is just awesome. Also, some questions were very predictable and those teachers gave me those questions which I made mistakes in tests, and the same question by luck was there in JEE examination. Literally, I would find the same questions which were there in the mock test as it is in the examination. 2023 Session 1, I found that some of the theory questions were repeated from the tests that I have given. मैम थैंक यू. बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा. एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना सबसे पहली चीज़ तो सपोर्ट ही चाहिए होती है, बताने को चाहिए होता है कि करना क्या है. तो वो सारा ही आपसे ही आया है और कहीं से नहीं आया, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है. तो एक रिसोर्स मिला, वो पहली बार में इतना अच्छा मिला कि बहुत enormous अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिला, तो उसी से हो पाया, और कुछ नहीं कर पाता ये क्रैक. Next stage of our preparation is doing the assignments and group activities. तो अब हमने लाइव क्लास कर लिया. जो लाइव क्लास में पढ़ाया गया है उसका ई-बुक अवेलेबल होता है, दैट यू कैन लर्न एंड रिवाइज एवरीथिंग दैट हैज़ बीन टॉट इन द लाइव क्लास from the ebook. And for every class the backup recording is available in our institute. तो अगर आपका कुछ मिस भी हो गया तो आप दोबारा लाइव क्लास को देखो, पर रिविजन के लिए आप दोबारा लाइव क्लास यूजुअली नहीं देखते बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम. सो दैट इज वाई वी प्रोवाइड ई बुक्स फॉर रिविजन. जो भी हमने पढ़ाया है वो अगर आप ई बुक से देखोगे तो आपको समझ तो पहले आया हुआ है, लर्न ही करना है, तो ई बुक से यू कैन कंप्लीटली लर्न दैट. फिर हम लोग आपको असाइनमेंट्स देते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ देते हैं, जिससे आपको चीज़ें लर्न हो जाती है. अगर आप खुद नहीं भी लर्न कर रहे हो तब भी आपको थ्रू असाइनमेंट्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग दैट वी हैव टॉट टू यू. Now that one topic is complete, understanding and learning part is complete, then we give you online topic tests which are usually MCQ based question on that particular topic which can come in the examination. तो वो बिल्कुल ही ऐसा सिंपल नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना
आने वाला होता है, एंड दैट विल प्रिपेयर यू फॉर द एग्जामिनेशन. सो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू गिव दीज टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट ऑफ एवरी टॉपिक दैट वी हैव टॉट यू. ओके, एंड सेकेंडली हम लोग फिर जब 2-3 टॉपिक्स हो जाते हैं तो एक वाइवा लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं हर एक बच्चे का इंडिविजुअली, एंड उसके मार्क्स को ग्रुप में शेयर करते हैं. सो इट रियली बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन वी टेक दीज ओरल टेस्ट एंड वाइवा. तो जो भी उन्होंने पढ़ा होता है वो फिर से टेस्ट के लिए रिवाइज करते हैं और एकदम पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, डन एंड डस्टेड, एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, तो इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन करवाते हैं. एंड लास्टली देयर इज द मॉक टेस्ट. नाउ मॉक टेस्ट आर वेरी, मतलब बहुत ही मेहनत से बनाई हुई चीज़ है, क्योंकि वो बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक होती है. जैसा एग्ज़ाम आता है बिल्कुल वैसे ही हम सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चंस देने की कोशिश करते हैं. इवन आवर LMS प्लेटफॉर्म, which is a learning management system platform, is similar to the examination platform that you will have, because your examination is also going to be an online mode. तो एग्जामिनेशन जैसा आपका होता है, बिल्कुल 3 hours का टाइमर चल रहा है, 125 क्वेश्चन हैं, एक एक करके क्वेश्चन शो हो रहा है, MCQ है, फिर इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है सब बिल्कुल सेम पैटर्न पे एग्जाम की तरह हम आपको बना के देते हैं, जिसकी मदद से आप बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा नहीं एग्जामिनेशन में, यू गिविंग द एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. सो यू विल फील लाइक यू ऑलरेडी डन इट बिफोर. तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो एक्चुअली ऑन द एग्जाम डे. सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर ऑल द टॉपिक्स, फॉर मोस्टली इन द एप्टीट्यूड एंड द मैथ्स पार्ट. बट अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग होती है, हल्की सी, जैसे असाइनमेंट्स दे दिए, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज़ उसमें कम होती हैं, असाइनमेंट्स बनाने के लिए ज़्यादा होते हैं. फिर आपके टेस्ट्स आपको दिए जाते हैं कि जैसे ह्यूमन फिगर्स हैं वो कंप्लीट हो गया, फिर टेस्ट दिया. पर्सपेक्टिव है, असाइनमेंट दिया पहले, फिर टेस्ट दिया, फिर आपका एग्जाम लाइक मॉक टेस्ट. तो इस तरीके से होता है. एंड बहुत, मतलब आप इतना सोच सकते हो दैट इफ़ यू जॉइन SSAC एंड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड, ये तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बोला है कि ये तो आपको अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपने पैसे दे दिए, आपने ज्वाइन कर लिया तो आप क्रैक कर लोगे, ऐसा थोड़ी होता है. क्लास अटेंड करोगे, टेस्ट दोगे, मॉक दोगे, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा यार. तो हार्डवर्क करोगे तो 100% है, मतलब मैं ये नहीं कह रही 10% है, फिर भी 100% है सच्ची में. एंड मैं इसीलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं बस ऐसे मुझे बताना है, रियली में यू कैन सी आवर रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट ईयर. For JBAC examination, 1/3 of the students were topper, 1/3 of the students who enrolled in SSAC. पर जिन्होंने क्लासेस अटेंड की थी वो 1/3 ही थे. समझ रहे हो ना, जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करने वाले बच्चे थे वो तो 1/3 ही थे, वो सारे टॉपर बने, सारे जिनसे मेरी पर्सनल इंटरेक्शन थी. जो बच्चे मतलब एक एक्टिव थे क्लासेस में, सब टॉपर बने, सब. कोई एक ऐसा नहीं मैं जानती जो एक्टिव था और वो मार्क्स नहीं ला पाया, कोई भी नहीं. और ये सच है, सच में. आप मतलब कमेंट्स में अगर SSAC किसी बच्चे ने कुछ लिखा है तो आप खुद जाके उनसे पूछ सकते हो. दिस इज़ ट्रू.